बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हंसते मुस्कुराते और आपको मुस्कुराने पे मजबूर करने वाले कॉमेडी की दुनिया के शहजादे नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की बहुत ही ख़ास मेहमान, नामवर फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन, टिकटॉक की दुनिया का रोशन सितारा नौशीन सईद उर्फ डॉली। नाज़रीन डॉली की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले लिए चलते हैं हम आपको रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में नमूदो नुमाइश की इस जालिम दुनिया में। और गल सुनो, अज मेरा मूड बड़ा वधिया ही। किसी ने कोई मनूस गल की ना, जे मैनू चढ़ गया गुस्सा ते मेरी तनख्वाह मर जानी है ते मैं टुटियां लत्तां तोड़ देनियां। इस गल दा तेरी तनख्वाह ना किता लगो। ओ चुप करो, मैं उन्हां नूं डरा ही रिहा वां। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਉਠਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਦ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। हाँ कुड़िया दस, तेरा आए दिन कोई ना कोई मसला बनया रहता, हुण कादी लड़ाई पई घर च? ना चौधरी साहब, मैं अपने घर से बहुत तंग हूँ, मैं इस बंदे के साथ उस घर में नहीं अब रह सकती। और क्यों नहीं रह सकती? तू आए दिन कह देती मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्या प्रॉब्लम होगी तुझे? मेरा शोहर इतना कोई कंजूस है ना, इसके पास 1 रुपया नहीं है कुछ देने के लिए, ना ये राशन बांट सकता है। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। गल ते तेरी सही है। ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਐਨ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰੌਠਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਚੱਲ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਖਾਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੁਕਮਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੇਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ। ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਆ। ਓਏ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਚੌਰੀ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਲਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੌਰੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਰਾਜ ਭਰਜਾਈ ਤੈਨੂੰ? चौधरी साहब, एक तो इस बंदे ने इतनी कंजूसी की हद की हुई है ना, किस अजीम खानदान से हूँ मैं। ਤੂੰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਇਹਦਾ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰਾ? मेरे अब्बू का नाम अजीम है, वो खानदान के बड़े में तो अजीम खानदान हुआ ना। ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਠਾਣੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਯਤੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। प्रॉब्लम क्या है तेरा? ना चौधरी साहब, ये इंसान बांटता है रोज अपने घर के बाहर राशन, मेरे दिल को हौल पड़ते हैं, हम क्यों नहीं बांटते? ਨੀ ਭੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ना तेरे दिल को हॉल क्यों पड़ता है कुड़िए? ना चौधरी साहब, ये राशन नहीं बांटता ना। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਸਮਝਣ। ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੌਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੋਲ ਖੋਲਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੀ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। क्यों ये की भैड़ी हरकत करन लिया तू है? बाकी सारियां चीज़ां ते बर्दाश्त हो जांदियां ने, ये चीज़ बर्दाश्त करने वाली है ही बशर्मा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ? ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਇੰਜ ਪਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਕੱਟ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜੇ, ਰੋਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੋ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਕਿਆ कहने ਆ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮਸੀਤੇ ਕਰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮੰਡਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੜੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋ 버ਗਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਾਠੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਰਾਠੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਊ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-6 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ना चौधरी साहब यही मेरे कान बैठते हैं कि तेरा बंदा राशन क्यों नहीं बांट रहा। क्यों है? तू दूध चोरी करता है? चौधरी साहब जब मैं पिंड से लांग रहा होता हूँ ना तो इसकी माज मुझे ताक रही होती है। वे अन्या उत्ते भी वेख्या कर, ऊपर से मैं भी चाहत रही होती हूँ। चाहती तो तुम मुझे भी हो। तेनू चाहतना है मैं, तेरी ते होई नहीं ते चौधरी दी भी दौड़ गई है। ओ कुड़िए हेलो, अपना केस ले गई है, मेरा केस खराब करना है तू? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਈ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਓਏ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਨਸਿਆ ਉਹਦੇ ਖੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਫਿਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ भाई चलो मुझे एक बात बताओ, जी चौधरी साहब। तुम्हें हया नहीं आती हो? पिंड से तुम दही इकट्ठा करके तो फिर बाद में पिंड में ही बेचना शुरू कर देते हो। ਤੇ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ बता तुझे कितने छितर मारूंगा आज। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਸੇ और फिटे मुँह तेरा तेन क्या उतो नहीं कुटना, उतो नहीं कुटना। ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਖਮ ਛੇੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਵੜਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ये पहली बारी थी छेड़िया। हाँ तू बता, तू महल्ले में मतलब पिंड में इतना खुला राशन क्यों बांटता है? चौधरी साहब तुझे शर्म नहीं आती? तुझे नहीं पता कि तेरे हमसाये तंग होते हैं, उनका दिल खराब होता है? हैं? तुझे गुनाह सवाब का जरा भी ख्याल नहीं ओ है? नहीं। अब मेरी बात सुन ले, जी चौधरी कल से तूने क्या करना है? जी। राशन तूने बांटना ना, हाँ जी। तूने इधर हवेली में लाके सारा राशन रखना है। जी मैं अपने हाथों से बांटूंगा और तू किसी को नहीं बताएगा वो राशन तेरा है। पूरे पिंड में ऐलान कर दो वो राशन चौधरी की तरफ से होगा। एक काकी खुश है तू? जी चौधरी साहब। चौधरी दे फैसले इस तरह देने। चौधरी ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਲੇਟ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਮਾ ਚੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮੱਝ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 7-8 ਕਿਲੋ। 7-8 ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵੇਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਧੋਣੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੈਣ ਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਚੌਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਦਾ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। बस किसी न किसी दिन चौरी नूं ही ले जाना है। ਇਹ ਚੌਰੀ ਜੀ ਹੁੱਕਾ ਵੇਲਾ ਵਾ। ਵੇਲਾ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਡਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਓਏ? ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਲੱਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। क्यों कह रहे? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯਰਕਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਯਰਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। दुनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉली ये बताएं कि आप ब्यूटिशियन का उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगी? ये कहा जा सकता है कि बनाओ सिंगार की माहिर। माहिर जमालियात माहिर- कैसा तर्जुमा है? बहुत प्यारा है। चले, जमील अगर हसीन। मैं कहूं कि आज हमारे साथ एक माहिर जमालियात भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं, बुटीक की मालका भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, और एंकर भी हैं, और 20-25 चीजें हैं आप,
ठीक है, अब ये बताएं कि सब कुछ करने के बाद कभी दिल में ख्याल नहीं गुजरा कि एक्टिंग भी करनी चाहिए थी? एक्टिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक्टिंग भी की है। आई थिंक मोर कौन देन सा नया 100 काम है जो ना सॉन्ग्स मैंने किया हो? डिफरेंट सिंगर्स के किए हुए हैं और उसमें एक्टिंग ही होती है सारी। अच्छा जरा खड़े होकर गुस्से में बैठे हो, तो करना क्या चाहनी है? अच्छा, ये बताएं कि आपने फैशन इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? वेल ये मैं आपको सच में बताऊं कि ये एक हसीन इत्तेफाक कह सकते हैं कि लोगों ने इनकरेज करते करते और अप्रिशिएट करते करते मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि मुझे ना एक जो मेरा स्टार है उसमें कुछ थोड़ी सी कौन सा इंफरादियत या स्टार है कुछ आपका? लियो। अच्छा, लियो है। जी। तो हम लियो कुछ और ऐसे जबरदस्त होते हैं। बंदा ना हो कैसे हो सकता है? तो बस वो एक जो अपने आप को बहुत ग्रूम्ड और बहुत फिट एंड फाइनल लुक में रखने की जो एक आदत थी ना, वो जहाँ जाना कुछ अप्रिसिएशन ऐसी मिलनी, कुछ रिस्पांस ऐसा कि वो करते करते मैंने सोचा यार मैं अगर अपना इतना अच्छा कर रही हूँ तो मैं लोगों का बहुत अच्छा उनको गाइड कर सकती हूँ। व्हेन दे आस्क मी क्वेश्चंस तो क्यों ना प्रोफेशनली इस काम को लेके आगे बढ़ें। तो फिर ये सभी का मिली भगत थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दी है। यानी ये वही मामला है कि वो लोग तालियां बजाते हैं तो कहता है कि जी मुझे ये बताओ धक्का किसने दिया था? एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है तो लोगों ने धक्का दिया था इस फील्ड में आपको? बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो गुड। ये खूबसूरत धक्का था। खूबसूरत धक्का। और यकीन करें कि मैंने अगर ये सोचा था ना, ये टारगेट लेकर मैंने ये काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने लोगों को कुछ बनाया है और उनको एक मुकाम मिला है। दे आर डूइंग वेरी गुड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे आई थिंक कि ये एक सुकून जो होता है ना आपको, इनर सेटिस्फेक्शन, ये वही होती है उनको एक मुकाम पे देख के, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। अच्छा डॉली, ये बताएं कि आप इतने शोबों में आपने कदम रखे हुए हैं और कामयाबी के साथ आपने कदम रखे हुए हैं, अगर ये सोशल मीडिया का इनकलाब ना आता तो भी आप इतनी कामयाब खातून होती? वेल किसी ना किसी तरफ तो कोई पंगा ऐसा होता कि जिसमें वो खुद को प्रूव करती, क्योंकि मैं लगी रही हूँ, अच्छा। रुकी नहीं हूँ, और कामयाबी को कभी ना कभी तो किनारा मिलना होता है। तो जबरदस्त। इसलिए मुझे पता है। मैम ये डॉली का तखल्लुस कहाँ से मिला आपको? हाँ, डॉली इज प्रॉपरली माय निकनेम। अच्छा। और आपके दिल में ये ख्याल क्यों है कि आपने सिर्फ डॉली के ऊपर ही अटैक किया? यार इतनी देर तो फारग ही बैठा था, मैं क्या कुछ तो पूछा। देखो तेरा मतलब सवाल कोई नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया, अम्मी को पता था कि इसका ऐसा नाम रखने जो पूरे पाकिस्तान में एक ही होगी। वाह। तो जब कहा जाता है ना अब ये हो गया कि डॉली, तो ऑप्शन नहीं आता कि कौन से वाली, सबको पता होता है यही डॉली। गूगल भी एक ही डॉली निकालता है। तो पुराने वक्त बाबियां दे ज़हन च होर डोली आंदी चुकण वाली। डॉली आप ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है, अपना फैशन के ऊपर या अपनी होस्टिंग के ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अच्छा लगता है बताना कि मेरा पहला प्यार जो है वो तो मेरा सैलून ही है, जहाँ से मुझे एक पहचान मिली और फिर आगे बढ़ती गई सब चीज़ें, तो वही मेरा पहला प्यार रहेगा सैलून सबसे ज़्यादा। अच्छा, आपने ब्लिंक के नाम से एक फैशन ब्रांड भी मुतारिफ करवाया है, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। और जो मेरे वहाँ पे ड्रेसेस हैं, एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर वेयर, वो सब मेरे अपने डिज़ाइन किए होते हैं और बहुत यूनिक होते हैं, कॉमन डिज़ाइन नहीं है उनके, नॉट इजीली अवेलेबल। अच्छा डॉली, ये बताएं कि देखें आप जब ब्लिंक को अपने सोशल मीडिया की नज़र करती हैं, जब दिखाती हैं, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे अक्सरियत जो है ख़ास तौर पे टिकटॉक पे, वो तो उनको देखने के भी ताब नहीं ला सकते माली हवाले से। तो क्या कभी ये सोचा है कि एक आम खातून को भी बनने संवरने का तो शौक होगा ना, अच्छा पहनने का भी शौक होगा, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए? बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप कह रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, बहुत यूनिक है। उनके लिए जो एक्सपेंस खरीदते हैं बहुत यूनिक है। डिजाइन कट्स जो होते हैं वो एक अच्छा, आप मुझे डिजाइनर बताएं, की जान रेंज होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम? रेंज जो कैसे? है लाइक 12-13,000 से स्टार्ट होती है। 12-13 से स्टार्ट है आपके ब्रांड हाँ, का? ओके। एवरेज है। मैक्स? और देन अकॉर्डिंगली फिर वो, अब आप जितना भी उसको पार्टी वेयर में ले जाएं या ब्राइडल वेयर में ले जाएं, तो वो फिर अकॉर्डिंगली होती है। डॉली जी, मैं भी आपसे एक टिप लेना चाहता हूँ, कम से कम 1000 रुपया। यानी पूछना ये चाह रहा हूँ मैं आपसे कि मेरी स्किन बहुत हार्ड है जी, तो मैं कैसे इसको सॉफ्ट करूँ? माँ बाप को थप्पड़ खाया कर। यार नहीं, ब्यूटिशियन आए ने कुछ पूछन तो दो, आप बताएं ना डॉली जी। बताएं, आप बताएं। मेरा तो लेडीज सैलून है, उनकी तो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा जी, तुसी भी सैलून पा ले? तो तेरा वरना जगह ते बैंड सैलून ने ना है। अच्छा डॉली जी, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके पार्लर पे काम करवाया हो
और एंड पे कह दिया हो मैं तो मजाक कर रही थी। तो डॉली एडी जोर ना पर्स फट के कहती लेकिन मैं तो नहीं कर रही। मैं तो नहीं कर रही थी ना। हम तो बहुत सीरियस थे लेकर। अच्छा डॉली, फैशन से सोशल मीडिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? सोशल मीडिया ऐसा है कि वक्त की रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो हमें यहाँ मूव करना पड़ता है, क्योंकि जब ऑफिशियली हम काम को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम कोशिश होती है कि हमारा वो आर्ट, हमारी वो मेहनत मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सो सोशल मीडिया एंड स्पेशली टिकटॉक नाउअडेज इन ट्रेंडिंग। तो सबसे पहले आपने किस प्लेटफॉर्म पे कैटवॉक करते हुए कदम रखा? मेरा जी अपना प्रोडक्शन हाउस है, लियो प्रोडक्शंस के नाम से, और वहाँ पे मैंने माशाल्लाह से पाकिस्तान के सबसे बड़े, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इवेंट्स करवाए जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती थी। यानी आप इवेंट मैनेजर भी हैं, ये मैं बताना भूल गया। इवेंट मैनेजमेंट भी सारी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड के विकी साहब मेरे साथ बैठे हुए, इन्होंने मेरा एक शो होस्ट किया हुआ है, उसमें इन्होंने भी 4 चांद लगाए हुए और बाकी भी मजीद बहुत सारे चांद थे वहाँ पर उतरे हुए थे। तो वो बहुत अच्छा शो रहा था हमारा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। जहाँ तक आपने सवाल किया कि सबसे पहले कौन सा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, तो ऑब्वियसली फेसबुक। फेसबुक पे कदम रखा। फेसबुक को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो एक ऐसा मासूम सा प्यार है सबका कि वहाँ पर सभी फेसबुक होते को भी हैं। नहीं कभी भूलना चाहिए और देशबुक को भी ना भूलना। Yes. सुना होता है बहुत। बिल्कुल। एंड देन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। वो मैंने तब स्टार्ट किया था जब किसी को कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ये तो सब अब चल रहा है। तो वहाँ पर उस वक्त मेरे अराउंड कोई 5 लाख सब्सक्राइबर थे। ओ जबरदस्त। और ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब तक तो शायद वो कितने मिलियंस में होते अकॉर्डिंगली, अगर टिकटॉक को कंपेयर करूं तो इतने ही वहां पर तो भी टिकटॉक पे कितने अब आपके? अराउंड 16 मिलियन होने वाले हैं। 16 मिलियन। ओह माय अल्हम्दुलिल्लाह गुडनेस। जी। और इंस्टा पे? इंस्टा मेरा थोड़ा स्लो है, उसको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। नहीं, वहां पे क्यों है? वहां पे जब आपने कदम रखा डॉली, तो पीछे से किसी ने कहा डॉली नहीं, ओली। मैं खुद लापरवाह हूँ उसको लेकर। अच्छा। नहीं, इंस्टा पे आपके इतना मिलियन जुलियन नहीं है। सुहाना, याद कराना पड़ता है रोजाना। सवाल तो तुम्हारा रह ही गया। जी, तो अब आते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। जी, फैशन शो में वॉक करते हुए अचानक आपके जूते की हील टूट जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, उई मैं मर गई कहकर वॉक से वॉकआउट कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक्टिंग करेंगी कि ये नया ट्रेंड है। ऑप्शन नंबर 3, नंगे पांव वॉक करेंगी। ऑप्शन नंबर 4, सामने बैठी हुई मॉडल से जूता मांगेंगी। मेरे साथ ये हो चुका है फॉर रियल। अच्छा। हाँ, वो जैसे कि फ्लोर होता है तो 2 फट्टे आपस में ज्वाइन किए होते हैं, उसके दरमियान में गैप था, मेरी हील जो है उसके अंदर बारीक जो है वो स्टक हुई और मेरा पाँव वापस ही नहीं आ सका, वहीं रह गया, उसके अंदर वो इतना फिक्स हो गया और मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी थी वहां पर। और वो माजूरों का स्पेशली शो था, मैं व्हील चेयर के साथ एक मतलब वॉक कर रही थी और साथ में थी, तो उठी हूँ मैं। मुझे ज़्यादा ये था कि वो सब कुछ बैलेंस रहे कि जो मेरे साथ है, और मैंने वहीं से दोबारा वॉक किया प्रॉपर उसी तरह से। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन लेंगी जो उसने सवाल किया? ये नहीं छोड़ती। जाने नहीं दे रही है, गाड़ी के पीछे तक आ जाती है। वॉक करूंगी उसी तरह, उसी हालत में वॉक करूंगी। नंगे पैर। जूती बच गई तो एज ए लड़खड़ाते हुए ना उस तरह को अगर हील टूट जाए वे किसी वॉक हो सकती है रैंप पे। कैसे? लो जी, मैंने उठना पैना। चले कैसे? सर आज ये भी कर हील टूटी हुई है और सिंपल वॉक करना है आपने। चले, हील टूटी, स्टार्ट लिया, हील टूट गई। ये स्टार्ट लिया, ये हील टूट गई। उसके बाद मेरी बात सुने, मैं आपके पीछे आऊं, एक पाँव उतार के, अभी पता चल जाएगा। एक हील 5 इंच की है, दूसरी एक पाँव उतार के मैं पीछे आऊं, यानी पीछे पकड़ के जूता। अच्छा, एज ए एंकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो मुझे लगता था कि जैसे वाकई मैं फिर पढ़ने पे गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं भी मूंह दा ना पेडिक्योर करवाना। मुंह दा पेडिक्योर सुना कभी किया है? मैं सुन तो बात सोच रही है कि चाह दा शोरबा ना बने और चाह ਨੂੰ पता नहीं है बेचारा करदा ही असरा। कल सूप पी रहा, मैंने कहता ਸੀ मैं बोटियां वाली चाह पी रहा। मैडम कर दियो मेहरबानी, मेरी मंगनी होने वाली है। मैं समझ नहीं है जज्बात, लेकिन किस तरीके ना मेरे वास्ते आप बड़ी नवी चीज है, पहले मैनू सीखना पड़ेगा, फिर अगे चलेगी कोई गलबात। किस तरह होंदा है, मैं नहीं सुनिया कभी भी। और हम सिर्फ और सिर्फ लेडीज का करते हैं।
ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਕਾਸਾਂ वकासा ਬਾਜੀ ਵਕਾਸਾਂ ਇਹ ਕੀ ਵਕਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ वाह ना नहीं हो रहे हैं। इन्हें को तू मेकअप कराया फिर तू छक्कासा हो जाएगा। ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਅਦਰ ਕਰੀ ਪੈਰ ਧੋਆਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜ਼ਰਾ। बहुत अच्छी। नाज़रीन, डॉली की दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मैं डोली मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि फ़ैशन और शोबिज़ में रहते हुए कई लोग फलाही काम कर रहे हैं, तो आपका ऐसा कोई इरादा है? आपने शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा हो, लेकिन शायद कोई भी रमज़ान ऐसा आपकी नहीं है। नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने आते ही 5,000 रुपए शजर को दिया। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। और शजर रोन ला पे कहता जी 5 और लेना मैं। वैसे तो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल और दूसरे हाथ को भी ना पता चले, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं और इसीलिए हम दिखा के करते हैं कि लोगों को इससे थोड़ी सी उनके इंस्पिरेशन बनने के लिए या उनको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। बट हर रमज़ान में मैं ख़ुद जाती हूँ राशन तकसीम करने के लिए भी, और जो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मैं काफ़ी कुछ बहुत करती हूँ। Very good. बहुत हाईलाइटेड है। इधर भी माशाल्लाह जी पिछले रमजान गया था राशन तकसीम करने के लिए, तो उधर से और लोग भी तकसीम करने के लिए आए हुए थे। इन्हें 10 थैले वंडे ने 40 ले गया है घर। नाज़रीन, पै दर पै शिकस्तों के बाद हमारे क्रिकेटर्स की क्या हालत है, एक छोटी सी झलक देख लें। मुझे सिर्फ तुमसे तलाक चाहिए और मेरा तुमसे कोई मुतालबा नहीं। वाह, एक क्रिकेटर से तलाक लेना चाह रही हूँ। तुम्हें पता है एक दिन कितना बड़ा क्रिकेटर बनूंगा मैं। यही सोच के मैंने तुमसे शादी की थी कि एक दिन तुम बड़े क्रिकेटर बनोगे, विराट कोहली की तरह, और तुम निकल आए गरीबों की कोहली। मैंने सोचा था कि मैंने क्रिकेटर से शादी कर ली है, अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मौजें ही मौजें। Yes. मैं भी अनुष्का शर्मा की तरह सारे ग्राउंड्स में घूमूंगी, तुम चौका लगाओगे और मेरा क्लोज लगेगा, मैं क्लैप करूंगी, मुझे दुनिया जानेगी। यस। मुझे देख के लोग कहेंगे कि देखो इसका हस्बैंड चौके मारा है और ये कितनी प्यारी क्लैपिंग कर ली है। होगा इंशाल्लाह, होगा, देखना इस ड्राइव पे। वाह, ये कभी भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हें तो कोई मोहल्ले के ग्राउंड में नहीं घुसने देता। अनुष्का शर्मा तो एक पास से रह गया बढ़ना, तू ते मैनू राखी सावंत भी नहीं बढ़न देता। चलो वो पीसी दे इर्द गिर्द चक्कर ते मार दिए, मुफ्ती कभी उन्होंने रिश्ता ते भेजदा है। मैडम, किसी का मुंह लाल देख के ना अपने आप को थप्पड़ मार के मुंह लाल नहीं कर लेते। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे मुंह पे लाली नहीं? जान है लाली, लेकिन चपेड़ों वाली नहीं है ना। तुम्हारे मुंह पे तो चपेड़े भी मारे ना तो भी लाली नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे मुंह के ऊपर रेड कलर का रंग भी फेंक दिया जाए ना तो वो भी काला ही हो जाएगा। अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजी करी गुस्ताख। दुआ कर पहले ही मैच होवे तो पहले ही 100 परा चुल्ले च पाओ। या अल्लाह, मुझे कैसा डफर हस्बैंड मिल गया जो मैच की हाइलाइट्स देख के बोल रहा था बॉलर को ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर। हाँ, तो जान वो अंदर करेगा तो वो आउट हो जाएगा ना। जो तुमने ख्वाब देखे हैं जान वो पूरे जरूर करूंगा। तुम मुझे पवेलियन में बैठ के अनुष्का की तरह यूं यूं करोगी और मैं उधर ही निकल जाएंगे। मुझे तो यकीन हो गया कि तुमने क्रिकेटर शिक्टर नहीं बनना। मैंने पवेलियन की इस साइड पे बैठ के तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और तुमने पवेलियन की उस साइड पे बैठ के मुझे ऐसे ऐसे करना है। तुमने ना औरतों की रमीज राजी नहीं बनना। हाय, काश मैं रमीज राजी होती ना, तो मैंने बैठ के तेरी क्रिकेट पे कमेंट्री नहीं थी करनी, मैंने तेरे सारे खानदान पे कमेंट्री करनी थी। तेरी आंखें ऊपर नहीं थी होनी, मैंने वो पोल खोलने थे कि तेरी मासी को 6 तलाकें हुई हैं। तेरे से तो तेरी मासी अच्छी है, उसके 6 स्कोर तो है ना। बेगम, एक दफा मुझ पे ट्रस्ट करो। वे मैं ते तेरे ते उदो ट्रस्ट कीता सी ਜਦੋਂ तेरे ते कोई भी नहीं सी करदा। तेरे ते ट्रस्ट करन ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ। तेरे ते ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि ग्राउंडों बाहर गई बॉल तेरे अंदर सुट लैंड दे। तो जान ये बैट में एवं लेके फिर रहे हैं। इस बैट की भी सुन लो। क्या? इधर से टॉस होती है और इधर से तू इस बैट के ऊपर चिप्स रख के और आवाज लगा रहा है डाल जान वो मरे अपनी प्रोडक्ट्स ते सेम कर ले, तू किसी दिन फ्रॉड दे केस च अंदर हो जाना है। जान रखी चिप्स होंदी है ते बेचदा दाल फिरदा। जान वो मुझ पे शायकीन का प्रेशर होता है। वे बस कर, लाई तू फेरी होंदी है ते उत्थे बनन दे होंदे जवेद मियां दाल। जान
ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਟੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ अनुष्का दुआ कर एक दफा वहां मेरी सेंचुरी हो जाए। मैं तो दुआ कर रही हूँ उत्थे एक कारी तेरी एंट्री हो जाए, सेंचुरी हो जाए। जान तुम्हें याद है जब 1 माह पहले मैच हुआ था कितने लोग मेरे पीछे भागे थे? वो इसलिए भागे थे क्योंकि तू टास वाला सिक्का उठा के भाग गया था। जान तुझे पता नहीं वो सोने का होता है तब देखा, लालची। जान नहीं, लालची नहीं, दुआ नहीं करती यार तू मेरे लिए कि मैं एक दफा सेंचुरी करूं और तेरा नाम रोशन करूं। मैं तो दुआ करनी या तू मेरे डिवोर्स दे दे या तेरी फोटो टंगी जाए। इंशाल्लाह एक दिन स्टेडियम में मेरी फोटो टंगी जाएगी। सिर्फ एक दिन, और नीचे लिखा होगा ढूंढने वाले को 50,000 नकद इनाम दिया जाएगा। कर लो बातें जान, वो दिन दूर नहीं जब कजाफी स्टेडियम में मेरे नाम का इंक्लूजर होगा और वहां पे सिर्फ दाल बिका करेगी, दाल करेगी। वाह, यानी तेरा बंदा दाल वाला, वाह। अनुष्का ये देखो मेरा बल्ला। एवे चुक्की फरदा बल्ला दुर खल्ला तेरी बात में। अनुष्का ये देख मेरा बल्ला। तोड़ दिया बल्ला ते मोड़ देंगी मैं तेरा छल्ला ते घर दे नु जाके कवांगी छड़ आईया मैं वो चल्ला फिर मरदा फिर कल्ला। साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह, साडा की ये